सो ब्रो यार लाइक आपका मतलब क्या है, लाइक आपने क्यों नाम रखा? यार आब देखो बहुत ही मतलब बहुत डीप मीनिंग है उसका, जैसे कि बिल्लो पग्गे बिल्लियां दा की करेंगी. So The meaning is like that. very deep bro. But yeah, Aab bro, it's simple bro. Aab is water and that's about it. There's nothing else. We are shapeless, we are genreless. क्या होता है मतलब जब एक बंदे का गाना हिट हो जाता तो होता क्या है? लाइक हमें तो नहीं पता भाई. पहले तो मेरे को ये लगता है कि जहाँ रोड पे घूम रहे हैं लैम्बोर्गिनी चलाए, हर जगह हर जगह सही में भाई. बट लेकिन that's a great feeling as well, right? Like ग्रेट एक्चुअली में हाँ ग्रेट भी है और अपना maybe at the start it's a great feeling and then it's like irritating. I don't know. एक्चुअली गुरदास मान साहब और उस्ताद गुलाम अली खान साहब के साथ तो मैंने मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी निकाल दी है. इतना मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है ब्रो. और उनका अप्रूवल आना किसी गानों में, अगर उनको मीनिंग नज़र आ रहा है ना, right. तो वो अप्रूवल देंगे, नहीं तो वो कहेंगे पुत्र की कर रहे करता की बंदू है ना, की कर रहे हैं पुत्र, तू खाना तो खा रहे हैं ना आजकल. तो यू नो लाइक तेरा दिमाग तो चल रहा है ना, तो सेंसलेस म्यूजिक मत बनाइयो. सब कुछ बना लो. सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट जो मार खा जाते हैं ना, वो यही करते हैं, बनाते रहते हैं और रखते रहते हैं. भाई रखो मत, फेंको, रिलीज करो, चैनल पे मत करो, अपने गानों को एफडी मत बनाओ, रिलीज करो. बिकॉज़ आई थिंक हम लोग जो भी गाने बना रहे हैं उसको लिटरली हम 1 से 2 हफ्ते के बीच में डाल दे डालो नेक्स्ट बन जाएगा. बंदे ना प्यार, जब एक ट्रैक से आप प्यार करने लगते हो ना बहुत ज्यादा, आपको लगता है यार ये ट्रैक मेरी जान है, इसको तो मैं ये करूंगा, ठीक है, इसको मैं 2 साल बाद निकालूंगा, हाँ इसको मैं निकालूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा. वहां ना इंसान मार खा जाता है. आर्टिस्ट तो सबसे ज्यादा वहां पे मतलब पिट जाता है. What's up guys, welcome back to Silk Road Podcast. काफ़ी दिन हो गए और मैंने आज इनवाइट करा अपने really good friends of mine, कपिल एंड बाबा, जिन्होंने recently they have collaborated together and formed up a dynamic duo called with an artist name called Aab. And आज स्पेशली मैं इन लोगों को इन्वाइट करना चाहता था कि like they share their experiences, like because we've been recently working together on several hits जो कि हम लोग Instagram और YouTube पे शेयर करते हुए भी आए. And that's I want to get them along because Kapil and Baba का काफ़ी experience रहा है इंडस्ट्री में and they've worked for like almost around 20 years in Mumbai. Like Kapil especially has worked with many known artists and he's like sat with them, worked with them and like learned from him, and there are a lot of experiences that he can share. And at the same time Baba like who's like worked on the top level with many different hits like Lamborghini and Prada, so and they carry eminent amount of experience that they can share with us and clear out a lot of hoax in the industry, how they work along and many other questions. Like there are a lot of things that I think we have on our plate in terms of कि हम लोग क्या चीज़ों पे काम कर रहे हैं, right? And so let's start with that and welcome guys. What's up bro? Thank you bro. How's it going? All good man, how are you? Yeah, I'm good. Like it took so much time to set this up, right? Like True, भाई. कितना time लग गया? By technical is a big thing bro. Right. And हम सारी चीज़ें like खुद ही कर रहे होते हैं. Like we don't really have a big team and shit like that. So like setup करने में आधा टाइम लग जाता है. That's the best part bro. Pilot batch. Right. And we were talking about कि सिर्फ 50 मिनट लगते हैं सब चीज़ों को like wrap up करने में, right? So how weird is that? But anyways, like thanks for like coming here. Thanks for joining us and I really appreciate कि तुम बहुत easily ready हो गए इस podcast को करने के लिए भी. अरे भाई कि मतलब in the sense कि like a lot of people are either not outspoken about like another thing is कि content बन रहा अलग बात है, but on the other hand you guys are open to share your thoughts and like 100% bro. It's an opportunity to be very honest because podcast करने से एक अलग experience भी आता है bro. मतलब that's something very good for me and for Baba to learn also at the same time. It's nice to know कि thought process क्या चल रहा है हमारी लाइफ में when it comes to like you know making music and stuff, and at the same time कि आप लोग क्या कर रहे हो and then so like आप लोग क्या कर रहे हो. True that. So bro, I think जो भी म्यूजिक बना रहे हैं, पहले तो जो वाइब जो at that very point of time जब हम म्यूजिक बना रहे होते हैं, जो वो वाइब होती है ना ब्रो, उसमें dwell होना होता है completely. और we want to give people 90s pop also, 80s pop also and today's hip hop also, you know, सब कुछ accumulate कर रहे हैं हम in different composition. और I think this is what I feel personally. So bro यार like आपका मतलब क्या है, like आपने क्यों नाम रखा? यार आब देखो बहुत ही मतलब बहुत डीप मीनिंग है उसका, जैसे कि बिल्लो पग्गे बिल्लियां दा की करेंगी. So
So bro, मतलब The meaning is like that. very deep bro. But yeah, bro, it's simple bro. Aab is water and that's about it. There's nothing else. We are shapeless, we are genreless. Right. We are trying to do every kind of genre which is possible कि हम जो अपनी language में present कर पाएं लोगों को. Right. True. That's an interesting thing. But आपका like इससे question मेरे को राइव हो रहा था कि like आप कह रहे हो कि like genres पे तो गाने बनाते हो, but like what are the general themes around when you write them? Because Aab is not just like कि दो artists काम कर रहे हैं, like it's both of you are composers, and both of you like compose also, things and write lyrics as well. Right. So like how do you guys like work along? कभी कभार like आप लेके आओ तो गाने या फिर साथ में गाने बना रहे होते हैं, like what's the idea? Bro, कुछ पता है, कोई पैटर्न नहीं है, मतलब ट्रस्ट मी. कभी बैठे हैं, कोई वाइब कर रहे हैं, कुछ गिटार लेके कुछ बैठे हुए हैं, कॉम्पोजिशन, कुछ मेलोडी क्रिएट करी, बाबा को कोई थॉट आ गया, सडनली बाबा ने बोला यार मैंने ये क्रिएट किया है ब्रो, दिमाग में आ रही थी, बहुत अच्छी लग रही है, चलो लेट्स डेवलप दिस, और साथ साथ ही लिखना शुरू कर देते हैं. देन वी क्रिएट अ गिटार लूप एंड देन वी स्टार्ट प्लेइंग ऑन. कोई ऐसा पैटर्न नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, मतलब सच में बता रहा हूँ, अगर मेरे से पूछा जाए या इससे पूछा जाए, मेरे को नहीं लगता हम जस्टिफाई कर पाएंगे उस बात को, क्योंकि पता ही नहीं है. कभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए कोई थॉट आ गया, लिख लिया उसको, इसने मेलोडी क्रिएट कर दी, यार इसको डेवलप करते हैं. ये दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी आर वर्किंग. बहुत बहुत ऑर्गेनिकली, मतलब बैठ के नहीं लिख रहे कि आज लिखना है गाना तो ऐसे लिखांगे गाना, मतलब ये प्लानिंग है हमारी. कोई प्लानिंग नहीं है सच में, और इसलिए मजा आता है. दैट्स ग्रेट, बिकॉज काफी लोग सोच रहे होते हैं कि लाइक उनको जब कोई भी नया गाना बनाना है, एकदम फाड़ गाना बनाना है, तो दे हैव टू थिंक ऑफ लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड इट कि वो एक वायरल हिट हो. बट इन जनरल मोस्टली द आइडिया इज कि आप जितने गाने बनाओ या फिर लाइक जितने आप अलग टाइप के गाने बनाओ और अलग टॉपिक्स पे गाने बनाओ, अलग लाइक उसकी मीनिंग हो या फिर लाइक द मैसेज दैट इट गिव्स अस, इज दैट द आइडिया? नो ब्रो, नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैं बताता हूँ क्या होता है. सी यू ऑल्सो नो इट वेरी वेल, व्हेन 2-3 musicians are sitting and jamming together, right, they start creating. जैसे मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है, तेरा नशा नशा तेरी अखां में, जो वीडियो है ना वो, उसमें सब बैठ के चिल कर रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं कुछ. मतलब मेरे को ऐसा नजर आता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि ऐसा नजर आ रहा है. I can understand, because like people start enjoying that. You have to kind of get in along with the vibe of the person, 100%. Like or not the person, is the producer as well, like yes कि उसके साथ vibe करो, and because जो बंदा बना रहा है और जो बंदा लिख रहा है, like those are like two important things in the song, like I feel और जो मतलब प्रोड्यूस भी करवा रहा है, I feel like कि किस तरह से गाना है. 100% bro, and creating that right sound is also the game, like game changer. पूरा गाना होता है, production is the bed, उसके ऊपर ही सारी composition और song writing होती है. Yeah, because from the context of a producer I can say that कि मेरे को ये challenges हमेशा आ रखे हैं कि या तो मेरे को प्रोड्यूस लाइक सिंगर को बहुत तमीज़ से गवाना पड़ता है, तभी मतलब रिजल्ट बढ़िया आएंगे, राइट. एंड विद बाबा एंड लाइक यू, लाइक मेरे को ज़्यादा चीज़ें करनी नहीं पड़ी. सो लाइक दैट्स सो मच इम्पॉर्टेंट आई फील इन द टीम एज वेल, कि सब अपने 100% दे पाए, राइट. तभी मतलब प्रोडक्ट एकदम से बन जाता है. बिकॉज लाइक we won't brag about it, but हमने गाने बहुत जल्दी बनाए, बहुत जल्दी बनाए in recent times, बहुत जल्दी बनाए, like maybe in a week or so हम लोग ने week or so तो फाइनल मास्टर में बैठे होते हैं हम, right. मतलब we don't even change the mix and master. और एक्चुअली वो चीज़ मेरे को लगता है वो इसलिए भी हमारे बीच में है क्योंकि हम ना अपने पार्ट को हमारे को पता क्या करना है. right. हम ये नहीं सोच रहे कि यार एक गाना हमने वायरल बनाना है, उसको स्टडी करो, वायरल सॉन्ग को भी वो कैसे बना था ये वो, right. हम अपनी चीज़ों पे सारे जने पक्के होके बैठे हुए, हमें पता है हमने क्या क्या करना है, अपनी चीज़ों को समझते हैं हम. बिल्कुल ब्रो, तो इसलिए जल्दी चीज़ें बनती हैं. दैट्स द आइडिया, मतलब कि एक ऐसी टीम रेडी करनी जरूरी है जो लाइक इतनी प्रोडक्टिव हो. एंड नाउ वी गोना कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, लाइक हाउ डू वी अप्रोच दैट इन द इंडस्ट्री, बिकॉज काफ़ी सारे कंफ्यूज थॉट्स हैं. कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई लेबल्स को पिच करो, कोई बोल रहा है कि ये नहीं यार अपने आप ही रिलीज करते हैं, बिकॉज द इंडस्ट्री इज ऑलवेज इवॉल्विंग. आई फ्रॉम माई अंडरस्टैंडिंग पहले लोग बहुत ईजिली लेबल्स को अप्रोच कर देते थे एंड दे वांटेड टू सेल most of their product. But now the time is changing in terms of making a brand. Are you like agreeing on that? Like what do you think कि आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हो चीज़ों को? like यार हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि हम अपने चैनल को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि genuinely in coming 5 years we know that we will have a great big channel.
Right. I'm sorry, 5 years, I think next year also Yeah. could do that. You, right? you never know. Yeah. Yeah, you never know. True So अब जैसे ही आपका कोई गाना चला, आपको पता है आपका चैनल उठ गया. राइट. ये तो एक क्रक्स है जो मेरे ख्याल से मेरे को काफ़ी देर बाद समझ आया. बट पहले मैं हमेशा चैनल सोचता रहता था कि कोई भी गाना बनाया इस लेवल को सुना सकता हूँ, इस लेवल को सुना सकता हूँ. अब मेरा खुद का लेवल है तो मुझे पता है भाई कि ये गाना मेरे को लगता है, आई एम दी A&R, आई विल से दैट दिस सॉन्ग इज ग्रेट. और I will say this song is great. But why? What's the urgency? मतलब इतना important क्यों है अपने चैनल पे बनाना? That's my question. Bro, I'm like okay, let's not go negative here. सब कुछ positive है इसमें भी कि आप you know all the streaming rights are yours, all the royalties are yours, right? You have your own channel. You can keep posting unplugged also, so that even if you can't do your own unplugged song. You know that, right? When you release it with the label. Because you need to have a lot of license and all that in order to, otherwise you will receive a notice from YouTube that you're using the same audio, right? Yeah. So ये भी होता है, इसलिए I think restrictions कम होती है. और प्लस जल्दी काम हो रहा है. और जल्दी काम होता है. बहुत जल्दी काम हो रहा है. बिल्कुल. लेबल के साथ यही है कि लेबल के साथ अच्छा भी है bro. उनके साथ बुरा भी नहीं है. They invest a lot in you. I mean, they do, but like the idea changes quite a lot, right? In that sense कि मतलब my question still is remaining the same कि काफी लोग पहले सिर्फ लेबल को अप्रोच कर लेते थे. Yes. Why are big artists changing that philosophy? Like West से सब कुछ इवॉल्व होता जा रहा है. हम लोग डेफिनेटली वी नो दैट वहाँ पर सबके अपने लेबल हैं. Right. सबके अपने चैनल्स हैं एंड दे हैव बैकिंग फ्रॉम देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लेबल्स. Okay. So their own channel is there. That's like another thing that's like changing in the industry in the sense कि organizations like let's say maybe Believe or like many other organizations are backing artists जो कि मतलब prominent लग रहे हैं उनको या फिर so yeah, I mean that's interesting to know कि और अपना लेबल होने के बाद भी challenges कम नहीं हैं. वही मतलब आपको अच्छी प्लेलिस्टिंग मिलना. वही same social media scenario like that you have to bring numbers or you have to find creative ways to 100% make things happen. That yeah, so प्लस ये आपके चैनल वाली बात से ना मेरे दिमाग में भी क्लिक हो रही थी चीज़. जैसे आप एक्टर्स को ले लो, पहले सिर्फ अगर आप पुरानी बातें करें सिर्फ लोग जाते थे कि अच्छा यार मुझे बॉम्बे जाना है और जाके मुझे ऑडिशन देना है मूवीज़ के लिए. अभी सीरीज इतनी आ गई हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, यहाँ वहाँ सब एक्टर्स को काम भी मिल रहा है, हर तरीके से मिल रहा है. सीरीज भी हैं उनके पास, हर चीज़ें हैं. तो वैसे जो म्यूजिशियन भी है ना उसके लिए भी ईजी हो चुका है. वो यूट्यूब है, सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स है, वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर को दे सकता है ट्रैक. तो लेबल सिर्फ इकलौती चीज़ नहीं रहेगी. पहले सिर्फ यूट्यूब पे डालते थे लोग. बट कभी कभार ऐसा लगता है ना कि ये गाने पोटेंशियल हिट. दैट्स व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस क्वेश्चन टू यू बाबा कि लाइक तेरे गाना हिट ऑलरेडी हुआ. लाइक वी कैन टॉक अबाउट लैम्बोर्गिनी और प्राडा इन द सेंस कि अगर वो गाने इंडिपेंडेंटली रिलीज होते तो दे माइट हैव नॉट गॉटन दिस बिग इन द इंडस्ट्री. यार मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता कि क्या पता होते तो उससे भी बड़े हिट होते. लेकिन लेबल भी था, उसने बैकिंग भी बहुत अच्छे से करी है और वो पहुंचा अच्छे से सारी तरफ. तो वो भी बड़ा हुआ. और लेकिन कुछ कह नहीं सकते ना यार कि हम अपने चैनल से डालते. कभी कभी दिमाग में आता है यार चैनल से डालते तो क्या अपना और बड़ा हिट हो सकता था. और पैसे जो भी डिवाइड होने होते हैं लेबल और आर्टिस्ट के बीच में वो कहीं ना कहीं हमारे 100% होते हैं. तो ये चीज़ें भी होती हैं दिमाग में. सो यार कोई थ्योरी नहीं है. मेरे को लगता है अपना जब दिल में जो आ रहा है ना कि ठीक है इसको मैं लेबल को पिच करता हूँ और वहाँ से सपोर्ट अच्छी मिल रही है तो बहुत बढ़िया. और कभी कभी ऐसे भी होता है कि लेबल से कभी ऐसा होता है कि नहीं मिल रही है सपोर्ट. हाँ ठीक है, वो भी चीज़ वो सिनेरियो भी लेके चलो, वो भी है. बट लाइक सो हम गाने काफ़ी बना रहे हैं एंड I'll talk about the actual experiences. Like we recently made a song. We won't name it because we won't name out the actual like you know the little spices that we have. Right. So but हम लोग का एक thought आया था कि यार ये गाना शायद लेबल को अप्रोच कर सकते हैं. So there is some scenarios like this कि कुछ गाने से लगते हैं आप what would you say on that like कि हाँ कुछ गानों की वाइब आ जाती है. आपको समझ आ जाता है, आपको समझ आता है कि यार ये गाना ना अच्छा हम कुछ गाने अपने चैनल के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना. हम काफ़ी गाने अपने चैनल के लिए बना रहे हैं. इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो हमारे को कुछ पता लग जाता है कि यार इसको अगर हम अपना लेबल को दे देंगे तो ये जल्द से जल्द ना जो ऑडियंस तक हम पहुंचाना चाहते हैं वहाँ पहुंच जाएगा फटाफट. क्योंकि अभी क्या है ना हमारा चैनल भी ग्रो हो रहा है. Right. जिनका ग्रो हो चुका है वो बंदा सोचता है ठीक है यार मैं तो अपने भी डाल दूंगा, मेरी ऑडियंस बनी हुई है. अभी हमारा ग्रो हो रहा है धीरे धीरे. हमारी ऑडियंस जब जानना चाहेगी हमारे को यार अच्छा यार इनका गाना आ रहा है मेरे को सुनना ही सुनना है, तो वो हम तब चीज़ सोचेंगे ठीक है हमारे को लेवल पे नहीं जाना. Just to make things clear for everyone, I think like Baba individually and Kapil individually were making music for some time like separately, but now they are a dynamic duo who came up together to with this entire like concept of Aab, right? And it's a fresh new channel. That's why just like a fresh new slate we are bringing everything in, right? Right, bro. That's great. So but
that's what my question arrives to now कि तेरे hit के बाद like what was the things that changed like as soon as that hit came along like उसके बाद क्या होता है मतलब जब एक बंदे का गाना हिट हो जाता तो होता क्या है like हमें तो नहीं पता भाई. पहले तो मेरे को ये लगता है कि पहले मेरे को लगता है कि जहाँ रोड पे घूम रहे हैं लैम्बोर्गिनी चलाए हर जगह हर शादी में हर जगह बज रहा है सही में भाई. बट लेकिन that's a great feeling as well right like great actually में हाँ great भी है और अपना maybe at the start it's a great feeling and then it's like irritating I don't know actually बिल्कुल सही बात ये जो आपने बोला ना irritating भी होता है मतलब actually यार मैं सही बताऊँ लैम्बोर्गिनी बहुत पसंद आ रहा है सब हुआ ये वो हुआ लेकिन ठीक है मेरे को इतना बहुत बढ़िया नहीं लगा अपने जनरली बोलूँ मेरे को ऐसा नहीं लगा भाई क्या गाना बना दिया और उसी पे अटका रह गया लोग होते हैं ना एक हिट दिया और उसके बाद अटके रह गए अपने को ये यार और भी गाने बनाने हैं लैम्बोर्गिनी हो गया अब होगी वो पुरानी बात ठीक है लेकिन उसके बाद ये भी है कि हाँ आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है इंसान के ऊपर कि यार मुझे हाँ वैसा करना है मैंने अपने ऊपर वो प्रेशर नहीं लाया मैं नहीं अपने दिमाग में ये सोचता रहा कि नहीं यार वैसे ही बनाना है वैसे ही बनाना है अगली वाइब में बनोगे ना लैम्बोर्गिनी itself is a pretty commercial hit right and like if we look at it in that sense like True. I'm not sure how if Prada did the same or less or not but the idea is ki like you're an artist at the end right and you want to find the fine balance between a commercial product and what you are as a person so I understand what you mean मैं समझ रहा हूँ तेरी बात मैं तो सिर्फ इसलिए लेके आया इस टॉपिक को कि बिकॉज काफ़ी लोग को ऐसा लगता है कि भाई एक हिट कर दो और the life changes and then whatever you make is like that but it's a constant struggle right like और यार साथ में पता है चीज़ ये भी है आपने जैसे बताया ना कि बंदा अपना उसके बाद क्या आ जाता है लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या चेंजेस आ जाएंगे ये है वो है सबसे बड़ी बात तो पहले तो आर्टिस्ट को ना अपने दिमाग में जो और भी बंदे हैं जो सोच रहे हैं कि यार हमने आगे गाने बनाने हैं हिट करना है ये वो चीज़ें करनी है अपने दिमाग में एक चीज़ ज़रूर रखनी है कि पहली बात तो हम जॉब नहीं कर रहे हैं जॉब के अंदर स्ट्रेस लेता है बंदा काफ़ी सारी चीज़ें करता है हम इस लाइन में आए इसलिए थे क्योंकि हमारे को प्यार था इस चीज़ से राइट हमें 9 to 5 वाली चीज़ें नहीं करनी थी हमारे को प्यार था और हम इस चीज़ में आए अब उसको भी तुम प्रेशर बना लो अपने सिर पे कि ठीक है मैंने हिट भी दे दिया यार अब एक और देना दे दिया भाई वो हिट हो गया ठीक है उसकी स्टोरी खत्म करो आगे बढ़ो अगला गाना नहीं हिट हो रहा कोई दिक्कत नहीं आप बनाते जाओ कंसिस्टेंसी हल्के फुल्के गाने बस हाँ करते रहो लगे रहो बस और कुछ भी नहीं है भाई गेम यही है आप संतुष्ट रहोगे खुश रहोगे और चीज़ें आती रहेंगी और कुछ नहीं पता आप 4 गाने के बाद फिर से एक ऐसा आप बैंगर मार दो लोग पागल हो रखे हैं और तब भी वहीं पे रहो यार दिमाग को वहीं पे रखो तब भी मेरे को ये लगता है I mean what I'm trying to say is कि जब एक हिट हो जाता है तो उसके बाद एक नेक्स्ट हिट की वो तो बन जाती है कि लाइक भाई कर रहा है बट क्या चीज़ें आसान हो जाती हैं क्या लाइक in any sense contact like labels मिलने या deals मिलने आसान हो जाती हैं that somewhere might be a little bit हाँ ये तो है ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना कि मतलब हिट हुआ और कोई फायदा ही नहीं हुआ नहीं भाई बहुत फायदा होता है भाई हाँ तो फायदे की बात कर लेते फायदा होता है यार फायदा एक्चुअली ये होता है कि जैसे हम पहले अगर गाने लेके जाते थे मतलब ये पुरानी बात अगर कर रहा हूँ मैं तो गाने लेके बंदा गया अब लेके जाने के बाद उसको पहले धक्के खाने पड़ रहे हैं हर एक लेवल पे सुनाना पड़ रहा है ये वो चीज़ें अब वो गाना जब बूम हो गया बड़ा हो चुका है अब जब नेक्स्ट सॉन्ग आप लेके जा रहे हो ना आप प्रायोरिटी हो आपको सुना जाता है कि ठीक है यार अच्छा इसका गाना सुन लो इससे पहले ये चीज़ ही थी तो वो तो ऑब्वियस ही बात है वो अपना आई थिंक हर फील्ड के अंदर ही है कि अगर एक एक्टर की मूवी भी बढ़िया चल गई है उसके साथ सारे अपना जुड़े हुए हैं तो वो चीज़ आती है थैंक्स फॉर लेटिंग अस नो कि क्लियरिंग आउट द पिक्चर बिकॉज दूर के बैठ के सारी चीज सुहानी लगती है राइट लाइक कि अरे भाई इस बंदे का तो हिट हो गया होगा हाँ और रातों रात हिट हो गया ये भी सोचते हैं आई एम श्योर लाइक काफी लोग सोचते भी हैं ऐसे लाइक व्हेन समवन गेट्स एन हिट लाइक सब अच्छी चीज सोच रहे थे उनके बारे में बट लाइक देयर आर मेनी थिंग्स दैट अ पर्सन इज गोइंग थ्रू मैं इस बारे में सोचता था कि कुछ लोग इतनी हाई तक पहुंच जाते हैं अपनी लाइक एक इस लेवल पे पहुंच जाते हैं फेम के कि फिर उससे नीचे जो भी हिट उनको सताता रहता है कि भाई वो क्यों नहीं है यार वही सबसे बेकार चीज है ना लाइक सबसे बेकार है वो people like Jazzy B like he constantly hits निकाले इस बंदे ने और आज की डेट में like I'm sure he's remaking most of it like respect to him like he's awesome like हम तो बड़े हुए उनके म्यूजिक सुनते हैं he's a legend but बड़े उनके what I'm trying to say is कि वो भी he might be also thinking this way right कि यार वो निकालना है यार जो पहले निकालता था तो जैसी पाजी बजा सकते हैं हाँ but I'm sure like that's most of the intent of every other artist कि भाई जैसा आप बोल रहे हो कि भाई वैसे उतना हिट चाहिए चाहे आप उतना मतलब आप बोलोगे कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं बनाना आपको बढ़िया but like what's your experience talking about यार मेरे को लगता है कि आप 10 साल से सपोज करो गाना लिख रहे हो है ना तो कोई आपको बस बड़ी आसानी से बोल देता है कि
क्या है गाना ही तो लिखा है यार, 10 मिनट का काम है तेरे लिए, तो आधे घंटे का काम है, उनको ये नहीं पता और मेरे को पता भी नहीं कौन बोल रहा है पता है। सो वो गाना लिखने के लिए जो एक्सपीरियंस होता है वो कितना जरूरी है ब्रो। राइट, मतलब अगर आप आधे घंटे 1 घंटे में गाना लिख सकते, जो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब इतने बड़े बड़े राइटर्स हैं, लेजेंड राइटर्स हैं, कुमार पाजी हैं इंडस्ट्री में जो कितना सुपर्ब लिखते हैं। मतलब अगर मैं सोचूं कि वो 10 मिनट में गाना लिख देते हैं, उनकी जो जर्नी है पिछले इतने सालों की, उनके अंदर जो शब्द हैं वो जैसे पिरोते हैं वो मजाक नहीं है ना ब्रो। इट्स नॉट जस्ट राइमिंग, राइट, इट्स अबाउट मेकिंग सेंस, राइट, मेकिंग सेंस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। तो ये बहुत जरूरी है ब्रो। मतलब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं लिख सकते ना आप 10 मिनट में अगर आपको गाना लिखना है तो। चलो सही है, मतलब अब ठीक है हमने गाने लिख दिए, बट नाउ इन द सेंस कि अगर जैसे आपका लाइक नेटवर्किंग है, लाइक काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई इस बंदे से मिलवा दे, हाँ बात बन जाएगी, है ना, लाइक कि डील पक्की अपनी कि लाइक बस मिलवा दे। एंड आप तो काफ़ी सारे लोगों से मिले वैसे, आई एम नॉट श्योर दैट्स रियली द आइडिया कि बस बंदे से मिलवा दो। लाइक देयर इज अ लॉट टू डू, लाइक आई मीन पीपल आर नॉट, पहली बात तो कोई बंदा आपको मिलने के लिए बैठा, राइट, कोई मिलने के लिए बैठा, बट व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस, बिकॉज आप काफ़ी लोगों को ऑलरेडी जानते हो, लाइक you know सलीम सलमान एंड many other people you have chilled with, like you have them on your fingertips in terms of like आप बोलते हैं भाई बोल देता हूँ उनको मिक्स कैसा लग रहा है, राइट, सुना देते हैं मेरा हमारे मिक्स। So वो मेरी प्रिविलेज है, मतलब I'm lucky that I know that you have friends like that. So just knowing people, does that like help us in certain contexts? Maybe it might help us finding the right people to collaborate with. Bro, they guide what are you the right. aspects like that they guide you right for sure, have helped you? they guide you right, like गुरदास मान साहब और उस्ताद गुलाम अली खान साहब, मतलब जिनके साथ भी मैंने टाइम स्पेंड कर लिया। खान साहब के साथ तो मैंने मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी निकाल दी है, इतना मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है ब्रो। और वो जब रियाज करते थे या फिर गाने कंपोज करते थे, मैं हैरान होता था कि कैसे कर लेते हैं, मतलब यू नो। और आप बच्चे हो, आपके अंदर इतनी नॉलेज नहीं है, आपको बस गिटार बजाना आता है, चिल करते हो, आप तो वाइब कर रहे हो बस, यू नो। वो तो परफॉर्मर हैं, मतलब वो उनसे ऊपर क्या सिंगर कोई, मतलब दैट्स व्हाट आई फील। या आई मीन अपने गाने सुनाने में भी थोड़ी बहुत शर्म आती होगी, राइट? अरे भाई नहीं सुना सकते। वो तो जब चले जाते थे ना वापस लाहौर, तो उन्हें भेजता था मैं, अच्छा, कि शक्ल के सामने बेइज्जती ना हो जाए, हाँ कि सामने मत सुनाओ भाई। और उनका अप्रूवल आना किसी गानों में, अगर उनको मीनिंग नजर आ रहा है ना, तो वो अप्रूवल देंगे, नहीं तो वो कहेंगे पुत्र की कर रहे है ना, की कर रहे हैं पुत्र, तू खाना तो खा रहे है ना आजकल। तो यू नो लाइक तेरा दिमाग तो चल रहा है ना, तो सेंसलेस म्यूजिक मत बनाइयो, क्योंकि उनके टाइम पे 2-3 तरीके का म्यूजिक होता था यार, गजल्स, फोक म्यूजिक और कवालियाँ, यू नो। सो वहाँ इतना रॉ म्यूजिक था, वो वहीं से सब इवॉल्व होता आया ना ब्रो, एक्चुअली। तो और वो भी सुन लिया हमने, इतना सुन लिया, उन्होंने सलामत अली खान साहब भी सुनाया, जबकि खुद वो उस्ताद गुलाम अली खान साहब हैं, तो उनके साथ बैठ के वो सब भी सुन लिया। फिर हम पंजाबी यू नो पंजाब का जो पॉप म्यूजिक रिलीज हुआ, उसके बाद तो सीन ही चेंज हो गया हमारे लिए, राइट। हम लोगों ने क्या क्या सुना है, मतलब बड़े हुए वो चीज़ें, बड़े हुए हैं ब्रो सुन के। तो मतलब मेरे को लगता है कि उनसे गाइडेंस मिली है ब्रो, और उन्होंने वो बता के नहीं बोला है कि ये गाइडेंस तेरे लिए ज़रूरी है, ऐ कर, राइट। उन्होंने बोला बेटा साल लगाएगा जिंदगी भर, तो जो रियाज करेगा वो राज करेगा, तो रियाज कर लो, अच्छे बन जाओ और बेटर बन जाओ, राइट। ये गाइडेंस मिली है। और सलीम सर को मैं जानता हूँ, सलीम सर इज़ अ लेजेंड म्यूज़िक डायरेक्टर, कंपोज़र। मैंने देखा है कि उनके गाने वो किस तरीके से डिज़ाइन करे हैं उन्होंने, मतलब हमने तो सबने उनको बचपन से सुना ना। जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मैं उनके साथ बैठा, तो मैंने कहा, मैं हैरान हो गया ब्रो, मतलब उनकी वाइब, उनका स्टूडियो की वाइब, उनका काम करने का तरीका ब्रिलियंट, मतलब that's crazy, yeah. So, and no, that's what we all want to do. We've seen that on YouTube most of the times, कि like किस तरीके से वो काम करते हैं, and how passionate they are around like making music, and that's what usually is the vibe. Like जब कोई म्यूजिक बना रहा होता है, like कि अगर वो वैसी गूज़बम्स नहीं आ रहे हो ना तुम्हारे म्यूजिक में, तो फील नहीं है। like मैं जब भी कोई म्यूजिक पोटेंशियल ट्रैक जो भी तुम्हें सुनाया, तो मिले कि भाई इसमें वाइब आ रही है, तो लाइक एक फीलिंग आती है। सो दैट्स व्हाट दे कैरी, एंड इट्स रियली नाइस टू सी दैट, लाइक यू नो, लाइक यू हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ वाइबिंग विद देम, बिकॉज लाइक काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है कि भाई द रियलिटी ऑफ सिचुएशन, एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर, राइट। सो बाबा ने मेरे को बताया कि आप मान साहब से मिल चुके हो, एंड लाइक उनसे चिल कर चुके हो, एंड लाइक काफ़ी क्रेजी बात है यार। लाइक ब्रो बहुत हम्बल इंसान है ब्रो, मतलब मैं उनके घर गया ना, जब पहली बात तो मैं इसलिए एक्साइटेड था कि वो मेरे हीरो हैं ब्रो,
मतलब मैंने जितना उनको सुना है सबके हीरो हैं वो ब्रो, और वो बातें कर रहे थे और मैं बस देखता जा रहा था उनको। उसका रीज़न ये है कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, कितने म्यूजिशियंस सुपरस्टार्स हैं जिनसे आप मिलते हो, बट मान साहब ना ब्रो, ही इज़ नॉट ह्यूमन ब्रो। वो इतने हम्बल है ना, वो इतने हम्बल हैं ब्रो, मतलब ऐसे करके बात करते हैं जैसे कि आपने कुछ उखाड़ लिया, और यू नो वो इतने हम्बल है और वो नेचुरली वैसे हैं। यू नो आई मेट मंजीत जी ऑल्सो, उनकी वाइफ, मतलब उन्होंने प्लेटर, मतलब खाने पे खाना आ रहा है, nice. वो कह रहे हैं एंजॉय करो, है जलेबियां मैं मंगवाई हैं, तो जलेबियां खाओ है खाओ, यू नो, तो देख के उन्हें पता लग गया ना कि जलेबियां वो खाता होना है, पक्का खाने वाला बंदा है। तो और फिर उसके बाद मेरा हमारे कुछ म्यूजिशियन फ्रेंड्स भी थे, तो भाई सैफ गा रहा था और उन्होंने वो एक तो इतने गुलाम अली साहब की गज़ल गा रहा था वो, और उन्होंने जेब में हाथ डाला और 500 रुपये निकले मान साहब ने, और वो कहते ने कि यार मैं तो हैरान है कितों आ गए ने, अच्छा है ना। उन्होंने उसको 500 रुपये दिए, और ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कहते हैं मेरी जेब में कभी पैसे होते ही नहीं, किसी ने भी पूछ लियो। तो वो किस्मत वाला था, और वो इतने हम्बल आदमी हैं ब्रो, मतलब उनकी गुलाम अली साहब से ना वहीं पर फ़ोन पे बात कराई, तो जबकि खान साहब उन्हें देख नहीं सकते, कोई वीडियो कॉल तो हो नहीं रही, और वो झुक के बात कर रहे हैं जैसे कि यू नो जैसे खान साहब देख सामने ही हो। क्या बात, मतलब वो ऐसी चीज़ें सीखने को मिल गई ना उनसे कि ब्रो आप अगर किसी को इस लेवल की रिस्पेक्ट दोगे ना, हो ही नहीं सकता कि आपको सामने से ना मिले। सही बात है। तो यू नो आई हैव लर्नड दैट फ्रॉम हिम। और उन्होंने एक बोला भी था, बहुत अच्छी बात बोली थी, कहते पुत्र कदे भी तू गाना बनाएगा ना इधर आ जाई, कोई गल नहीं, यू नो। सो आई वाज लाइक क्या बोल दिया उन्होंने, मेरे सपोर्ट मिल ਜਾਂਦਾ ਹੈ, सपोर्ट मिल जाता ना, ਤੇ ਔਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਪੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ लेके जाऊंगी गाना हमारा synth wave सुन के देख क्रेजी, कुछ नहीं पता यार, कुछ भी हो सकता है, कुछ हाँ जी, जर्सी बीट बनाई थी। So that brings me to my next question, which I don't know what to ask. That's the best. मैंने लिखी हुई चीजें, but like रैंडम पूछो ब्रो। बट लाइक आई मीन हम लोगों ने राइटिंग प्रोसेस के बारे में डिफाइन कर दिया, वी टॉक्ड अबाउट स्लाइटली अबाउट की नेटवर्किंग पार्ट की, हाँ वो इम्पॉर्टेंट है, बट कीपिंग दैट असाइड, लाइक व्हाट इज दैट वन एडवाइस यू वुड गिव टू प्रोड्यूसर्स? अभी जो आजकल के प्रोड्यूसर्स हैं, लाइक सभी लोग लगे पड़े हैं। सत्यम भाई को सुनो यार, रिपल ड्रिफ्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोड्यूसर्स वी नोन भाई सो फार। सीटे वाली हो गई था पिछला, सीटे वाली तारीफ हो गई भाई, इंटेलिजेंस मतलब अलग लेवल पे, कमाल ब्रो, हैट्स ऑफ। नहीं एक्चुअली में चीयर्स यार, काम करके हमारे को बहुत मतलब क्रेजी अपना हमने प्रोड्यूसरों के साथ काम किया, लेकिन आपके साथ भी जब किया हमने, तो हमारे को काफ़ी चीज़ें नहीं पता लगी कि यार ये बंदे की टेक्निकल नॉलेज इस लेवल की है ना, ये चीज़ें हमारे को। अबे मेरे को तो ये रियलाइज हुआ है कि the people that you worked with, like if they possess that knowledge or not, तो हम लोग इम्प्लीमेंट करें तो अच्छी बात है, एंड हमारे अगर वो काम में दिखे तो बढ़िया ही है, हम उसको लाइक और लोग सुने उसको, rather than हम ब्रैग करें, लाइक काम बोलता है, राइट? दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ लाइक हम सभी लोग का मोटिव वही रहा है कि हम लोग अपनी तारीफ से पहले लाइक गाना दिखा दें, ये सुन ले भाई। सो कोई भी कुछ पूछता भाई गाना बना दो, तो मैं पहले लिंक भेज देता हूँ, लाइक यार पैसे बाद में सुनिए। बट या मैं लेट्स ब्रिंग बैक टू द पॉइंट, बकवास तो कर लिया हमने, बट कि लाइक व्हाट इज दैट वन थिंग यू विल से टू द यू नो प्रोड्यूसर्स हु जो आज की डेट में म्यूजिक हिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज म्यूजिक हिट कहीं से भी निकल के आ सकता है, राइट? बट उन लोगों के लिए जो मोटिवेशन एकदम तोड़ के बैठे हैं कि भाई अपने से नहीं हो सकता है, पर अगर वो बना भी रहे हैं, सो व्हाट इज दैट एडवाइस यू वुड गिव इन टर्म्स ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स दैट वी हैव, लाइक कि अपने आप रिलीज करना है म्यूजिक को, कैसे एक हिट बन सकता है? आई मीन ऑफ कोर्स हम लोग भी हिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट व्हाट डू यू थिंक कि आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो जो दूसरे लोग कर सकते हैं? ये स्पेसिफिकली आप ये बोल रहे हो कि म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को क्या मैसेज दे सकते हैं? म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को भी, आर्टिस्ट को भी, बिकॉज समटाइम्स दे आर बोथ ऑफ देम। मतलब मेरे को लगता है कि अगर मेरे को कोई ऑर्गेनिकली थॉट आ रहा है, मैं उसके ऊपर गाना लिख रहा हूँ ना, मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैंने बैठ के कोई गाना नहीं सुना और उसके बाद ये नहीं सोचा कि इसके ऊपर बनाता हूँ कुछ, यू नो, जबकि नथिंग इज ओरिजिनल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम समथिंग, है ना? हर कोई भी चीज़ किसी ना किसी चीज़ से निकलती है, मतलब ओरिजिनल नहीं होता कुछ भी, राइट? है ना? सब कुछ तो कहीं ना कहीं से निकला ही है। तो मेरे को लगता है कि आप बस अपनी वाइब का, जो म्यूजिक आपकी वाइब आपकी पर्सनालिटी पे सूट करता है, बिकॉज दैट्स व्हाट पीपल और रेजोनेट विद एज वेल, राइट? बिकॉज कोई भी आज की डेट में हिट हो रहा है लाइक गाना, दैट इज अ हिट इज बिकॉज पीपल कनेक्ट विद द इमोशन ऑफ द सॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम। आई फील वो एक सबसे
हाईएस्ट प्रायोरिटी है मेरे को गाने लगता है की। बाबा ने जब लैम्बोर्गिनी बनाया होगा तो उसने वो वाइब कर रहा होगा। मेरे को जितनी इसकी नेचर पता है, जितना मैं इसके साथ काम करता हूँ, मेरे को लगता है ये बस वाइब कर रहा होगा और गाना बन गया होगा। मेरे को इसकी नेचर भी पता है, वाइब करते करते। एंड समटाइम्स आई फील लाइक कि कुछ हिट्स लाइक ऐसे रहे हैं किसी के बीच जो बहुत ही सिंपली बन गए हो, राइट, बहुत ही इजीली ट्रैक बन गया हो, इतनी मेहनत नहीं लगी हो, राइट, और व्हाट द फक कैसे बन गए, राइट, इतनी जल्दी, और ये मतलब पसंद आ रहा है किसी को, राइट। एक्चुअली में लैम्बोर्गिनी यही है, राइट, कि यार ये पसंद आ रहा है। आई हैव दैट फ्रॉम एक्सपीरियंस, लाइक किसने भी बोला ना कि लाइक वो तो हम डॉक्यूमेंट्री बना देंगे इसके बाद कि बस ये करा यार इस गाने में 1 घंटे का कर देंगे, बट एक्चुअली गाना वो बना मे बी फ्रॉम अ थॉट प्रोसेस, इनिशियली द आइडिया आया और वो बन गया एंड इट्स देयर and it cracked so well. Yeah, true. So that's like one thing we can tell it to everyone कि मतलब there's no hard like formula towards making a hit in our opinion, right? I think like, Baba is the right guy. not just even a hit but like just to start off with कि मतलब हम लोग सभी लोग एक हिट बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे, म्यूजिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आवर मैसेज टू दीज पीपल वुड बी लाइक टू कांस्टेंट कि भाई कोई थ्योरी फॉलो मत करो, कोई पैटर्न फॉलो मत करो, सिर्फ वाइब करो और क्रिएट करो। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या, कोई भी करता है शायद, सब कुछ बना लो। सबसे ज्यादा आर्टिस्ट जो मार खा जाते हैं ना, वो यही करते हैं, बनाते रहते हैं और रखते रहते हैं। भाई रखो मत, फेंको, रिलीज करो, चैनल पे मत करो, अपने गानों को एफडी मत बनाओ, रिलीज करो। आई थिंक हम लोग जो भी गाने बना रहे हैं उसको लिटरली हम 1 से 2 हफ्ते के बीच में डाल डालो नेक्स्ट बन जाएगा। बंदे ना प्यार, जब एक ट्रैक से आप प्यार करने लग जाते हो ना बहुत ज्यादा, आपको लगता है यार ये ट्रैक मेरी जान है, इसको तो मैं ये करूंगा, ठीक है, इसको मैं 2 साल बाद निकालूंगा, हाँ इसको मैं निकालूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, वहां ना इंसान मार खा जाता है। आर्टिस्ट तो सबसे ज्यादा वहां पे मतलब पिट जाता है। उसको चाहिए भाई निकालता रहे, इतना लगाव मत लगा एक ट्रैक से, कर लिया हो गया, काम करा, आगे 1 साल बाद देखो कहाँ खड़े हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब चीज है, काफी लोग इतने लेके बैठे हैं उसको कि फिर दूसरे लोग बोर हो जाते हैं उसको सुन के कि जो आसपास में, और सभी लोगों को सुना देते हैं, और फिर वो भी बोर हो जाता है, उसको भी लगता है यार ये तो ना पुराना हो गया थॉट, अब इसको मैं नहीं करता, क्योंकि हमने भी गलतियां करी हैं लाइफ में, राइट। तो ये प्रूव होता है क्योंकि हम लोग पहले भी पॉडकास्ट में ये बात लेके आ चुके हैं कि लाइक कितना स्ट्रगल करना चाहिए उस चीज़ से कि भाई इसको परफेक्ट बना दो, ये कर दो। आई थिंक इनिशियली इफ द इमोशन इज कमिंग अक्रॉस, इफ वी हैव अ डिसेंट क्वालिटी ऑफ रिकॉर्डिंग, मिक्स मास्टरिंग ऑन इट, इट शुड बी आउट, राइट मैन, राइट। वरना तुम उसमें ओवर थॉट लगा के सोच रहे हो सब। सो दैट्स ग्रेट, लेट्स टॉक अबाउट आवर स्टफ, है ना। लाइक कि आप लोग आजकल क्या कर रहे हो, लाइक व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन फॉर यू गाइज। लाइक आप केम अलॉन्ग एंड सिंस दैट लाइक आप आई थिंक आपने 3 गाने निकाल चुके हो, राइट, इन डिफरेंट जॉनर्स, एंड मैं इसलिए बोलूँगी मैंने प्रोड्यूस करा, बट या आई मीन व्हाट्स द प्लान, आप लाइक व्हाट्स द आइडियोलॉजी दैट यू गाइज आर गोइंग विद एंड व्हाट्स आप अप टू? So I think we have like a very big bank of songs. Bang. Okay. Bang actually is the seeds naturally right came to me. तो bank of bangers. हाँ, तो हमारे ना Dangerous. हमारा बहुत जो हमारा बैंक है ना, हम उसको बस शॉर्टलिस्ट करते जा रहे हैं, आप प्रोड्यूस करते जा रहे हो। तो हम बस यही कर रहे हैं, हमारी प्लानिंग है बस कि एक के बाद एक गाना रेडी करते जाएं और साथ साथ उसको रिलीज करते जाएं। बट अब हम थोड़ी और बेटर स्ट्रैटेजीज के साथ काम करना चाह रहे हैं। मतलब इट इज ऑलवेज गुड टू स्टार्ट व्हेन यू इवन डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, एक्चुअली, है ना। एंड वंस यू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू डू दिस नाउ, लाइक बेटर वे आने लग जाती है अपने आप ना, कि एक पहला गाना निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, अब समझ आ गया और किस तरीके से the vibe with the producer and तो बिजनेस वाइब भी डेवलप होने लग गई है कि इसको बिजनेस वाइज कैसे लेके जा रहे हैं। पहले तो हम सिर्फ अंधों में काना राजा वाला काम कर रहे थे और वो हर कोई करता है। मतलब मेरे को लगता है ये जरूरी भी है क्योंकि आप फिर तभी तो सीखते हो। सही बात है। फिर अब आप 2-3 गानों के बाद सीख जाते हो, अब इससे अच्छे तरीके से कैसे रिलीज करा जाए, बेटर प्रमोशन के साथ, और ऑर्गेनिक रखो, बट प्रमोशन तो बहुत जरूरी है ना। सही बात है। तो अब यही प्लानिंग है बस। अब हम स्ट्रैटेजीज के साथ काम कर रहे हैं, बट काम उसी स्पीड में कर रहे हैं। ओके, एक्चुअली मतलब म्यूजिशियन को, जैसे म्यूजिशियन होता है ना, दिल से सोचता है, भाई दिल से सोचो, ठीक है, लेकिन जो हम भी अपना दिल से भी सोचते थे और अब दिल के साथ साथ दिमाग भी अच्छे से लगा रहे हैं उस चीज़ में कि आगे स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आना चाहिए। देन बेसिकली यू आर स्टडिंग कि क्या एकदम फ्रेश निकल सकता है या फिर क्या सिमिलर निकल सकता है एज पर दी करंट यू नो लाइक टेस्ट ऑफ द ऑडियंस। डू यू थिंक in that context as well?
आर यू थिंकिंग दैट कंटेक्स्ट यार मेरे को लगता है और मोर ओवर लाइक कि नहीं जो अच्छा सबसे लिखा है हमने उसको बनाते हैं? नहीं, मेरे को लगता है हम फ्रेश अपने पर्सपेक्टिव से कि हमें लगता है कि यार ये कितना फ्रेश साउंड कर रहा है ना, लेट्स रिलीज इट, देखें क्या होता है, राइट, यू नो, इस तरीके से हम मतलब दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, राइट, दैट्स ग्रेट, विदाउट थिंकिंग के ऑडियंस को, उनके लिए तो वो फ्रेश ही है ना. अगर हमने कोई गाना बनाया 6 महीने पहले, हमारे लिए वो 6 महीने पुराना गाना है ना, ऑडियंस को तो उस रिलीज डेट पे ही पता चला है उस गाने के बारे में, तो उनके लिए तो वो फ्रेश है. साउंड्स कितने फ्रेश होते हैं. So there are many songs that are going to be coming along, and you guys are like, किस तरह के genres should people expect? बाबा मैं बता देता हूँ. मेरे को लगता है सिंथ वेव हमने बहुत एंजॉय करना शुरू कर दिया आजकल, है ना. और हमने पर्सनली भी, है ना. तो डेफिनेटली सिंथ वेव हम बहुत कर रहे हैं, आपके साथ ही कर रहे हैं. आपको There's a Jersey song also you came yes, out. Jersey also. Oh my God. Baba played it to me for the first time कि यार you know ये फील कभी जिंदगी में सुनो भाई, वाइब करो, क्योंकि मैं वैसे भी थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप का आदमी हूँ. भाई बहुत क्रेजी ओल्ड स्कूल टाइप के, लेकिन क्रेजी वाले, बट बहुत मजा आया ब्रो. मतलब बाबा ने मेरे को बहुत एक्सपीरियंस दिया है ब्रो नए म्यूजिक का, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो जर्सी म्यूजिक कर रहे हैं, सिंथ वेव कर रहे हैं, आई थिंक वी आर गेटिंग इनटू पॉप आल्सो, 80s 90s पॉप. Nice. काफी चीजें चल रही हैं. आपको अच्छे से पता है कौन सी चीजें चल रही हैं. हाँ मतलब आई थिंक जिस तरह के आपके गाने आई थिंक आ रहे हैं, they are like really fresh in my opinion. Like I think what Aab is coming along with is something really unique and fresh in a sense of writer plus the way that we guys are making the songs all together, plus the production, and people, I think आप लोग मेरे को बताते थे people are really surprised with what's coming along, and बिकॉज जो भी हम लोग बना रहे हैं वो काफी डिफरेंट है जो आप लोग पहले बना चुके हो, राइट? बिल्कुल 100%, राइट. सो दैट्स ग्रेट. लाइक आई मीन, एंड मतलब हाँ वही जैसे आपने रिलीज वाली बात बोल रहे हैं कि ऑडियंस को क्या चाहिए, ये वो आपका क्वेश्चन था पहले. तो वही है कि यार वही हमें चाहिए. हाँ वही हमें चाहिए सही में. और साथ में ये भी कि यार आप अपना बनाओ, और कपिल भाई ने भी बोला जो आप बना रहे हो जिसको आपको लग रहा है हाँ यार ये अच्छा बन रहा है, ये मत सोचो ये अभी ट्रेंड, इसका ये ट्रेंड चल रहा है आजकल गानों का, ऐसा बनाता हूँ यार. यार वो ना ड्रामा खत्म हो चुका है मेरे ख्याल से. वो था 5-6 साल पहले था, ये ट्रेंड में चल रहा है भाई, ऐसे ही बनाओ. अच्छा, वो ड्रामे खत्म हो चुके हैं. जो दिल में आ रहा है ना इंसान को बनाए और निकाल दे, बस ज्यादा उसको लेके. लोग एंजॉय करते हैं आपके साथ जब कनेक्ट होते हैं आपकी जर्नी. यार ये कैसा म्यूजिक कर रहे हैं, वी लाइक द काइंड ऑफ म्यूजिक दे आर डूइंग. सॉन्ग को बच्चा बना लेते हो ना जब आप, उसको पालने लग जाते हो, उसको बड़ा करने लग जाते हो और समझने लग जाते हो. ये जैसे पेरेंट्स पुराने, ठीक है यार मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, 50,000 इंजीनियर उनकी लाइन के पीछे खड़ा कर दिया बेटे को, ठीक है मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा भाई, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा. जब थोड़ा टाइम बीता, लोगों को समझ लगे यार अच्छा ये इस चीज़ में जाना चाहता है, कोई बात नहीं जाने दो. वैसे ही ट्रैक को भी ये मत सोचो ये ट्रेंड चल रहा है, मेरा ट्रैक मेरा बेटा तो भाई ये ट्रेंड करेगा, ये तो 2025 में ही आएगा. हाँ आई मीन ये हटा दो. सही में हम लोग उस सेंस में तो काफ़ी सही चीज़ें कर रहे हैं. एक्चुअली मेरे को ये भी चीज़ पूछनी थी कि लाइक इन दैट सेंस कि जैसे आप लोग फिर से लाइक म्यूज़िक रिलीज़ करो, लाइक फॉर अ पर्सन एट दिस मोमेंट, किसी भी आर्टिस्ट के लिए how important is it to put in money in different aspects like video making, blah blah blah. बहुत सही क्वेश्चन है. Like because आजकल वो perspective change हो रहा है. Like is it important to put a video out or not? Not really. Right. At the moment. Right. I feel he also feels the same. बिल्कुल. Like मतलब वीडियो करनी जरूरी होती है. Is music more important? आपकी प्रेजेंस इम्पोर्टेंट है, आपकी वीडियो इम्पोर्टेंट है. Right. बट आई रिमेंबर हम यूट्यूब पे पहले कंज्यूम करते थे, टीवी पे बहुत देखते थे ना गाने. अब टीवी लोगों के पास टाइम ही नहीं है, गाड़ी में घूम रहे हैं पूरी दुनिया. तो स्पॉटिफाई और जितने भी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स है, दे आर मोर लाइक या सो एवरीबडी अप्रोचेबल. या सो हर कोई प्रीमियम मेंबरशिप ले रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते. राइट. आप एड फ्री म्यूजिक सुन रहे हो, बैक टू बैक सुन रहे हो, रिपीट पे सुन रहे हो, बार बार वीडियो, गाड़ी चलाते हुए वीडियो नहीं देख रहे हो. वेरी That's what I feel. So actually वीडियो का इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं है. राइट. है प्रायोरिटी पे है, मतलब इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रेजेंस ऑल्सो टू शोकेस द स्टोरी और द कॉन्सेप्ट ऑल्सो. That is there. Visuals are, audio visuals are important. I mean, some videos are really important to maybe give out the visual aesthetic, but like for सभी गानों के लिए I think music video बनाना कोई तुक नहीं बनता. नहीं यार जैसे अब नए आर्टिस्ट भी हैं, जो कितने नए आर्टिस्ट हैं जिनके पास अभी नहीं है बजट, ठीक है ना, वो ऑडियो बना रहे हैं
ठीक है, नए नए लड़के ऑडियोज बना के उनको रेडी कर रहे हैं, उसके बाद अब उनके दिमाग में ये भी डाल दो भाई अब तूने ऑडियो बना दी, अब तेरे लिए एक और जगह तू वीडियो भी बना, तो वो उस चीज़ में भी लगा पड़ा है, उसका कभी आउट ही नहीं हो पाएगा। ऑडियो फेंक को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लग रहा है अगर यार मैं इसकी वीडियो बना सकता हूँ, मेरे पास इतना टीम है या मेरे पास बजट है या मैं कुछ ऐसा कुछ ना कुछ जुगाड़ लड़ा के मैं बना सकता हूँ इसको, तो ठीक है बना ले। और अगर लग रहा है जबरदस्ती आप कर रहे हो तो ऑडियो फेंक दो यार, बिकॉज काफी बार किसी भी किसी भी गाने के साथ ऐसा हुआ, जो गाने चले हैं लाइक कि पहले उनके जो पहली चीज बनी थी वो बस ऐसी बन गई थी। इज इट ट्रू? लाइक कोई भी मेजर हिट हुआ है, उसका पहली बारी में थोड़ी ना उसका म्यूजिक वीडियो बना होगा और वो हिट हो गया, राइट? लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, बहुत सही में बिल्कुल है ना, लाइक उसकी एक बेसिक सी वीडियो बनी होगी, उसके बाद फिर वो चलता है, फिर उसके बाद एक मेजर, फिर वो ग्रो होता है ना, ऑडियंस भी कनेक्ट होती है यार कि पहले इसकी वीडियो ऐसी आई थी, अब देखो कितनी बेटर हो गई, अब देखो कितनी बेटर हो गई, अब तो ये पतला भी हो गया है, अब तो ये बॉडी पे भी काम कर रहा है। बट आई थिंक लाइक वुड यू एग्री दैट कि वुड यू एग्री ऑन दैट फैक्ट कि सोशल मीडिया हैज चेंज्ड दैट गेम क्वाइट अ लॉट? लाइक अब द गेम हैज कम डाउन टू कि भाई कितने स्पॉटिफाई पे स्ट्रीम्स आ जाएं, उसको पुश करते हैं होंगे लोग, लाइक जो मेजर हिट्स करा रहे हैं लोग, एंड कैसे सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए, राइट? दैट्स लाइक द हिट सिनेरियो। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक अ जनरल इंडिपेंडेंट जनरल हेल्दी हिट, लाइक सोशल मीडिया इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट? 100% है ना, एंड दैट्स व्हाट वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स कि किस तरह से लाइक लेट्स गेट पहले इंस्टाग्राम कंज्यूम करने की आदत थी, अब डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं हम कर रहे हैं सभी लोग, सभी। दैट प्रूव्स अस दैट बढ़िया है, लाइक आई मीन थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल दिस, थैंक्स फॉर बीइंग। एक बात और आपने मेरे से बोला था ना कि यार आप क्या मैसेज देना चाहते हो? हाँ, या मेरे को स्ट्राइक करा अभी कि आई फील पहले आप म्यूजिक बनाने से पहले, आप वीडियो बनाने से पहले, आप पहले एक बहुत अच्छी टीम बनाओ, वेरी राइट, जो आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार है एक्चुअली। तो आपको पता है आपकी बैकिंग स्ट्रांग है ना, तो अब मेरे साथ मेरे भाई लोग हैं, यू नो, डायरेक्टर है, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, राइटर है, अगर राइटर नहीं हो आप तो मतलब आपके पास पूरी टीम है एक्चुअली, तब आप ना टेंशन फ्री हो जाओगे, आपको पता है यार मेरे यार खड़े मेरे साथ, हम क्रिएट करते हैं अब। True. And that's what we saw in AP Dillon's or all these guys documentary की मतलब they isolate themselves and they work for like 10-15 years together and crazy music team actually में बहुत जरूरी है भाई, टीम एक्चुअली में बहुत, कि सारे बंदे अपना 100% दे रहे, A बंदे, and like they like with good feelings because partnerships also crash and whatnot, like we all are here after like bad experiences working together to figure out like with all the tick marks and whatnot, और पॉजिटिव थॉट वाली टीम सारी, या ब्रो सारे पॉजिटिव थॉट्स, मतलब ऐसा नहीं हो कि सिर्फ सिंगर सॉन्ग राइटर को ही आप तवज्जो दे रहे हो, इंपॉर्टेंस दे रहे हो मेन, राइट? कि आप सबको, मैं आपको उतनी इंपॉर्टेंस ही देता हूँ जितनी आप मेरे को देती हो, क्योंकि आपको पता है हम दोनों एक दूसरे के काम को पसंद करते हैं, पर साथ में ग्रो भी कर रहे हैं, फ्यूचर सोचा हुआ है पहले से। बट व्हाट कुड बी लाइक द डिफरेंट पीपल दैट वर्क यूजुअली इन अ टीम? आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं? लेट्स जस्ट से दैट, लोग नहीं मतलब कौन कौन designations are like producer, like why do we need to have these many people, like सबसे पहले तो आप ही हैं, और कौन है सबसे पहले तो आप ही becomes easy मैं तो वही प्रोड्यूसर तो बनता ही है। हमारी टीम में हमारा मैनेजर है who is also a good musician, he understands music, you know, his name is Silvio Olvin, तो वो म्यूजिक को बहुत समझता है और मार्केट को बहुत समझता है, तो इसलिए वो बहुत अच्छा ब्लेंड है, वो गानों में भी अच्छा क्रिटिक हो जाता है और अच्छा बता देता है कि कितना कैसा मुझे कैसा लग रहा है, यू नो, और मार्केट के बारे में भी उतना ही समझता है कि शोज कैसे मिलेंगे, बड़ा साफ स्पष्ट रहता है, बहुत स्पष्ट आदमी, ठीक है ना। सो मैनेजर एंड देन लाइक मैनेजर, वी बोथ, वी हैव अनदर गाय हु इज वर्किंग विद अस, हिज नेम इज आरुज, ही इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर अगेन, राइट? सो ही इज हेल्पिंग अस in different music altogether. So basically needed a manager, usually producers who can either deliver you a song or कि जो तुम्हें live performances में help करे, social media guy, right. And then you work with other like freelancers जो आपको streaming में help करा पाएं या फिर placements की help कर पाएं, right? So you like if you are working on a higher level or you're trying to do things in a team, these are the people that you supposed to have together. और अगर आप और आगे बढ़ो तो जैसे हमारे साथ वीडियो डायरेक्टर भी हैं, यस राइट, वीडियो डायरेक्टर हो गए अंकुश भाई, और उनकी भी आगे टीम है जो कि बहुत उनकी अपनी एक एक्सटेंडेड टीम है, वीडियोग्राफर्स ऑफ कोर्स कैसे बोल सकते हैं, राइट राइट। सो ऑफ कोर्स, सो आई थिंक वी आर अबाउट 10-15 people together when it comes to the members. प्लस यार हमारे ना हमारे जो म्यूजिशियन दोस्त भी है ना,
वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना जब ट्रैक रेडी करते हो, हमने ट्रैक रेडी किया, हम वो 2-3 दोस्त हैं हमारे म्यूजिशियन जिनको हम सेंड करते हैं, उनको हम सेंड करते हैं, वो भी सही रिव्यू देते हैं आगे से कि यार इसमें मेरे को वाइब आ रही है, इसमें नहीं आ रही, तो एक हेल्दी रिव्यू मिलना भी ज़रूरी है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिव्यू पे ही बैठे रहो यार, अच्छा मैं इससे सुनता हूँ, ये करता हूँ, रिव्यू नहीं, बट लाइक हम तो बस उस सेंस में बात करते हैं कि लाइक कोई भी बंदा टीम बना रहा है तो उसको क्या क्या चाहिए, लाइक रिव्यू वाले तो रिव्यू वाले बंदे तो बैठे हुए हैं, राइट, रिव्यू तो मैं भी फ्री रिव्यूज देता हूँ इंस्टाग्राम पे, बट नो, लाइक यू नीड अ टीम, you need a community, so actually that's what we do at Silk Road. So thank you so much guys इतने सारे insights के लिए, and it's really nice to know कि आपकी history क्या रही है, आप लोग like इतने experience hold करते हो, and thanks a lot for sharing and confirming the things that we do. Like कि हम लोग अगर चैनल पे बोल रहे होते कि ये चीज़ truth है, तो like then you can like tick mark that कि आज man like ये चीज़ चल रही है, and that's what we wanted to bring here, कि the right updates of the industry, कि like सिर्फ यही नहीं है कि ये कर दो वो कर दो, it takes a lot and everyone is working towards achieving that. Like in terms of producers, writers लगे पड़े हैं, composers लगे पड़े हैं to enjoy this magical journey of music, right, somehow. So thanks a lot for coming in. Thank you brother. Looking forward to your hits and best of luck. 100% bro, 100% होगा ये. Same to you man. Cheers. Cheers bro. Cheers man. So we'll see you in the next podcast till then. Thank you so much for joining in.